ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਰਥ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਚਾਈ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੱਗੇ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ,
ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਜਾਣੋ किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया। ये ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ मीठा लग गए, हर नाम पदार्थ नानक मंगा। वैसे किसी मनुख नूं, आम मनुख नूं कोई राज फाह देन लगे, फांसी देन लगे, कोई किसी नूं कोई दुख देवे, वो कहता ये बड़ा माड़ा है, ये तो बहुत माड़ा, ये मैनू फाह दे रहा है। पर नहीं, महाराज कहते नहीं, इहदा कसूर ही नहीं। पर साध संगत बाणी कहती है, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी, पार ब्रह्म सा अगन महसाड़ी। सच्चे पातशाह महाराज कहते ने, पूरा न्याय करे करतार, अपने दास को राखणहार। पूरा न्याय करे करतार, परमात्मा पूरा न्याय करता है। साचा साहिब साच नाए, परमात्मा सच्चा है ते ओदा न्याय भी सच्चा है। जेड़े मनुख हुण असल दे विच ते है हुक्म विच ही गुरु अर्जन साहिब जी जा रहे ने, पर महाराज निमाणे ने। और जेड़े लोग निमाणियां दे उत्ते, निताणियां दे उत्ते हंकार करते ने, क्रोध करते ने, परमात्मा नूं उन्हां नूं मारना पैंदा है। पार ब्रह्म सा अगन महसाड़ी। बाणी कहती पूरा न्याय करे करतार, परमात्मा पूरा न्याय करता है। पूरा न्याय करे करतार, अपने दास को राखणहार। अपने दासां नूं वो रखदा है, पर ओदे जेड़े दास ने वो ये समझ लैंदे ने मेरा कोई वैरी नहीं है। साध संगत दे विच आउण दे नाल मनुख नूं प्राप्ति हुंदी है, उस दे अंदरों ईर्खा द्वेष निकल जाती है। क्यों? उसनूं ज्ञान होना शुरू हो जाता है, उसनूं ये समझ आनी शुरू होंदी है, सब गोबिंद है, सब ब्रह्म है। ये जिन्ना भी खेल चल रहा है और किसी का चलाया चलता पिया है, अपना नहीं है। और जेड़ा मनुख इत्थे जिन्हों ये समझ आउंदी है, वो कह दिंदा है मैं इस जिंदगी का, ये दुनिया का एक हिस्सा हाँ, दुनिया चलाउण वाला नहीं हाँ। जिन्ने मनुख ये दुनिया ते जी रहे ने, दुनिया के हिस्से ने, और परमात्मा ने हरेक मनुख नूं उहदे हिस्से का कम बख्शिया होया है। जेड़ा जेड़ा जिन्हों रोल दिता है, किसी नूं मां का रोल दिता है, किसी नूं पिता का दिता है, किसी नूं भरा का दिता है। अपने अपने रोल मनुख वख वख समय में निभाउंदा रहिंदा। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। याद रखो, साधु के संग विच रहण दे नाल, साध देखो किसी साधु के संग का मतलब ये नहीं शारीरिक रूप में उहदे नाल रहना नहीं। गुरबाणी साधु गुरु नूं मनदी है। वैसे साधु होर भी हुंदे ने जिहड़े बंदगी करते हैं, वो साध ही हुंदे ने। बाणी कहंदी मन असाध साधा जन कोई। जिन्हें अपने मन नूं साध लिया, अपनियां अखां नूं संकोच लिया, कन्नां नूं संकोच लिया, जिहबा नूं संकोच लिया, त्वचा नूं संकोच लिया, वो साध है। जिन्हें अपने मन नूं साध लिया। साधु संग दे विच रहण दा मतलब ये नहीं असी शरीर करके किसी साधु नाल रहिए, ऐसा नहीं है। फिर तो सारी दुनिया नूं काम छड्डणे पैणगे, ऐसा नहीं। बाणी कहंदी मन करके उहदे नाल रहना, मन करके उहदे विचारां नूं मनना। जिन्हों महाराज कहते जीवत मृतक होए, जीवत मरै
मरै फुन जीवै, जिउंदिया मर जाए और मर के जीवे। भाव अपनी सोच नूं, अपने विचारां नूं सुट देवे, गुरु दे विचारां नूं, साधु दे विचारां नूं धारण करे। ਜਿਹੜੀ गल वो दसदे ने उत्ते तुरे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਦੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ है। क्यों? कारण कि अपनी अनुसार नहीं चल रहा, गुरु के अनुसार चल रहा है, साधु के अनुसार चल रहा है। और जेड़े गुरु के अनुसार चलते ने महापुनीत, बड़े पवित्र हो जाते हैं, उन्हां दा आचरण बड़ा सुनहरी हो जाता है, वेखणी निर्मल हो जाती है, सुनना निर्मल हो जाता है। मुख दे विचों जेड़े बोल ने वो निर्मल निकलते हैं, माड़े नहीं निकलते। आपां बड़े साधु दे संग दे नाल, गुरु नानक साहब जी दे नाल भाई लहणा जी रहे, गुरु अमरदास जी दे नाल गुरु रामदास जी रहे। और साध संगत किन्नी निर्माणता, किन्नी निमरता गुरु दे बोलां ते चल के आउंदी है, ये गुरु रामदास महाराज की जिंदगी चों विखदी है। एक वारी बाबा श्री चंद जी आए, गुरु रामदास जी की जिहड़ी दाढ़ी वो बहुत लंबी सी। बाबा श्री चंद जी कहंदे ने, हे रामदास जी, ये एड्डी वड्डी दाढ़ी तुसी क्यों रखी हुई है? देखो निर्माणता दे शिखर नूं छूहण वाले गुरु रामदास जी वो कहंदे ने, कहंदे जेड़े तुहाडे वर्गे गुरमुख प्यारे हुंदे ने, तुसीं हो तुहाडे वर्गे होर भी ने, जेड़े गुरमुख प्यारे हुंदे ने उन्हां दे चरण साफ करन लई। ये मैं दाढ़ी तां रखी है, जेड़े गुरमुख ने मैं उन्हां नाल उन्हां दे चरण साफ कर देना। साध संगत जेड़े निर्माणता, जेड़े दरख्त दीयां जड़ां जिन्नियां डूंघियां होणगियां उन्ना ही मजबूत वो दरख्त रहिंदा। इस करके साधु दे संग दे विच रहण नाल, गुरु दे बचनां ते तुरन दे नाल मनुख पवित्र हो जाता है, महापुनीत। पवित्र भी नहीं, पुनीत। और महापुनीत शब्द लाया। उहदी जिंदगी दा सुभाअ निर्मला, वेखणी निर्मली, बोलनी निर्मली। और महाराज बाणी दे विच कहिंदे ने, उहदा दुश्मन भी कोई नहीं रहिंदा। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ दुश्मन नहीं है, दुनिया भावें ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुश्मनी करती है। ये भी समझण वाली गल साध संगत, साधु दे ਵੱਲੋਂ कोई दुश्मन नहीं है, पर दुनिया विच कई ਉਹਦੇ दुश्मन ने। ਉਹਦੇ मन विच किसी प्रति दुश्मनी का भाव नहीं, पर दुनिया विच बड़े ऐसे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ प्रति दुश्मनी रखते ने, ਉਹਦੇ प्रति ईर्खा रखते ने। ये आप जी नूं जिन्ने भगत होए ने, जिन्ने भगत साहबान होए ने, सारियां दी जिंदगी दे विच ये आप नूं वेखण नूं मिलेगा। इत्थे आपां गल कहने साध संग दुश्मन सब मीत, इहदा दूजा मतलब भी लगदा है। जेड़े मनुख दे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ने, वैसे तो ये दुश्मन ने। क्यों? ये कुराए पा देंदे ने मनुख नूं। जिवें ही मनुख परमेश्वर की बंदगी च लगता है, ये जेड़े विकार ने ये भी अपना रूप बदल लेंदे ने। जेड़ा काम है ये साडी शक्ति बनती है, जेड़ा काम है एकाग्रता विच काम दिंदा है। फिर जेड़ी शक्ति थल्ले नूं जा रही सी उत्ते नूं आउंदी है। जेड़ी मनुख की ऊर्जा जिंदगी विच अजाई जा रही सी उत्ते नूं आउंदी है। जेड़ा क्रोध है ये अपनी शक्ति बदल लैंदा है। जो मनुख बंदगी करता है, बार बार गुरु के वचन सुनता है, क्रोध हुंदा ते अंदर ही है, अपना रूप बदल लैंदा है। रूप बदल के ये दलेरी का रूप लै लैंदा है, बहादरी का रूप लै लैंदा है। ये फिर जो निमाणिया अते निताणिया के उत्ते जुर्म हुंदा है, यही जिहड़ा अंदर क्रोध सी हुण एक बड़ी सूझता दे नाल हंकार है जिहड़ा वो भी अपना रूप बदल लैंदा है। किस दिन फिर असीं इहदे उत्ते पूरी विचार करांगे, ये किवें रूप बदलते हैं। क्रोध अपना रूप बदलता है, हंकार अपना रूप बदल लैंदा है। ये जिहड़े दुश्मन ने ये भी मित्र बन जाते हैं, जिन्होंने कहते पंच विखादी
ਏਕ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਵਿਖਾਦੀ ਨੇ, ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਟਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਨੇ ਔਰ ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਮੀਤ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਲੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਰਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 700 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
इस करके महाराज कहते तुसी लड़ो ना, तुहाडे लड़न का कोई फायदा नहीं। राम ते रहीम विच लड़ाई नहीं है, लड़ाई उन्हां दे पैरोकारां विच है। राम ते रहीम ते दोवें एक ही ने, लड़न वास्ते तुसी हो। साध संग दुश्मन सब मीत, उस मनुख नूं यह ज्ञान हो जाता है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। उन्होंने यह ज्ञान होंदा है, ये भाई परमात्मा ने इक्को नूर तो इक्को थां तो सारे आए ने। जिन्ने भी असी इत्थे बैठे हाँ, असल च जिस दिन दुनिया तुरी होएगी, एक तो ही तुरी होएगी। जे दुनिया दे बैक साइड च जाइए, दुनिया नूं पिछे जाते रहिए, अंत दे विच दुनिया का खात्मा एक ते जाके मिलेगा, पिछे पिछे जाते जाते। कहते असल दे विच दुनिया पैदा एक तो हुई है। दुनिया दे विच एक जैसा खून है, एक जैसा मांस है, एक जैसियां हड्डियां ने, नाड़ियां ने, बराबर ने, अखां बराबर ने, शरीर एक जैसा है, अंदर खून एक जैसा है, फिर लड़ाई किस चीज़ की है? साध संगत मनुख की लड़ाई शारीरिक नहीं है। कई बार क्या मनुख की लड़ाई है इन्हां वकारां ते खड़ी है। मनुख के अंदर मोह है, जिहड़ा उहदे मोह दे विच रोड़ा अटकाउंदा है, उहदे ते उहनूं क्रोध आ जांदा है। मनुख के अंदर हंकार है, जिहड़ा उहदे हंकार नूं सट पहुंचाउंदा है, उहदे ते मनुख नूं गुस्सा आ जांदा है। मनुख के अंदर मोह है, लोभ है, जिहड़ा उहदे लोभ ते सट मारेगा उहनूं इह जड़ों मिटाउणा चाहुंदा है। पर सत संगत दे विच आके सोझी मिल जाती है, मैनू किसी दे नाल लड़न की लोड़ नहीं। उन्होंने ये भी पता लग जाता है मैनू किसी नूं दोष देने की भी लोड़ नहीं, ये जो कुछ मेरे नाल हो रहा है मेरे कर्मां दा हो रहा है। ये मेरे नाल कुछ नहीं कर रहा, मेरे कर्मां दा हो रहा है। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। इस तो अगली गल उन्होंने ये भी समझ आ जाती है। महाराज बाणी कहते ने, जो वो कर रहा जो तुद भावै साई भली का। कोई मनुख उन्होंने गालां भी कढ़ रहा है किसी गल ते, उस उहदा ये नहीं कढ़ रहा, ये पिछे जिहड़ा है उन्होंने वेखदा। इन्नी निर्माणता दे विच वो मनुख चले जाते हैं जिहड़े रोज़ रोज़ सत की संगत उहदा मन करे। गुरु नानक नाम बचन मन सुने, शब्द किड्डा वधिया। ए मन प्यारिया तू सदा रहो हर नाले। शरीर गुरु दे नाल रहे सारा दिन, ये संभव नहीं है। सारा दिन गुरु दे नाल रहे ये संभव नहीं। मन सारा दिन 24 घंटे गुरु दे नाल रह सकता है, वो रह सकता है। शरीर सारा दिन गुरुद्वारे नहीं रह सकता, शरीर सारा दिन मंदिर च नहीं रह सकता, शरीर सारा दिन मस्जिद नहीं रह सकता, पर एक जिहड़ा मन है ये सारा दिन रब नाल रह सकता है। जिन्होंने क्या ए मन प्यारिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। ये मेरा मना जे तू गुरु नाल रहेगा। मन की मन दे विच विचार आया, देखो मन दे विच विचार चलते भी किवें ने। इत्थों निकले आ, कोई माड़ा विचार आ गया, कोई भी चीज़ सामने आ गई, देखो मनुख की मन नाल ही लड़ाई चलती है। पहला मन आप ही विचार दे दिंदा है, इस चीज़ नूं कर लवां, नाल ही दूजा विचार नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं करना। आप ही उन्हें विचार चुकिया, आप ही उहदे नाल लड़न खलो गया। सारा दिन मनुख नाल इवें चलदा है। पर रोज़ रोज़ जे गुरु की संगत करेगा, जेड़ा मनुख इनू रोकदा है ना अंदरों, जेड़ा मन, वो मन मजबूत हो जाता है। रोज़ रोज़ जिवें एक शीशे के उत्ते रोज़ रोज़ एक कपड़ा ना मारीए मिट्टी जम जाती है, फिर उहदे विचों रूप अपना विगड़िया लभदा है। पर जे किते रोज़ रोज़ कपड़ा मारते रहिए शीशा साफ रहिंदा है। एवें जिहड़ी सत संगत है, सत की विचार करनी, ये इवें समझ लो मन के उत्ते कपड़ा मारना है रोज़ रोज़। और ताई ते महाराज ने कहा भी मैं तो हैरान हाँ। महाराज कहते ने जेड़े कदी संगत विच ही नहीं आए, जिन्हां कदे गुरु की गल ही नहीं सुनी, उन्हां दी जिंदगी कैसी होएगी। बाणी कहती अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। मतलब कि इस गल तो मैं हैरान हाँ
मैनू तो इवें लगता है मैं एक सैकेंड भी एक घड़ी ना मिलती तो कलयुग होता। मैं मन दे विच एक मिनट भी रब दी विचार छड़ देवां इवें लगता है भी जिवें माड़े विचारां दा हड़ ही आ गया। पर जेड़े कदे संगत विच ही नहीं आए उन्हां दी जिंदगी किवें चल रही होएगी। साध संगत उन्हां दी जिंदगी है मार के जय तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विल लाए। कदे आप जी कोहड़ी नूं वेखना, कोहड़ी जेड़ा सारा दिन चीका ही मारदा रहिंदा है, उहदे अंदरों क्यों मावा चलदा रहिंदा है, उहदे शरीर फुੱਟਿਆ रहिंदा है, कोहड़ उहदे अंदरों चलदा रहिंदा है। जेड़े मनुख रब तो टुटे ने सारा दिन चीका ही मारते रहंदे ने, मैनू ये नहीं मिलिया उहनूं ये, कदी किसे नाल लड़नगे, कदी घर विच लड़दे ने, कदी बाहर लड़दे ने, सारा दिन उन्हां दा लड़ाई विच ही निकलदा। मन दे विच एक अजीब जिहा बोझ रखी फिरदे ने। फ्रस्ट्रेशन किसे दी है, अपने पापां दे कर्मां दा जोर आप है कढ़दे किसे ते रहिंदे ने। कदी किसे नूं माड़ा कह, कदी किसे नूं, जिहदे कोल भी बहणगे भला ते की कहना है, किसी दी भी गल शुरू होएगी नाल हाँ हाँ फलाना मनुख बड़ा माड़ा है। सारा दिन किसी ना किसी दी निंदा विच ही सारा दिन लंघ जाता है। महाराज कहते ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है। डराने का मतलब पता है की है, जेड़े मनुखा नूं परमात्मा ने बंदगी नहीं ना बख्शी कहते उन्हां तो दूर ही रहने का फायदा है। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, जेड़े नहीं ना आउंदे कदी गुरु की बाणी जिन्हां नहीं सुनी, कदे पढ़ी नहीं, नाम नहीं जपिया, कहते भुल के भी उन्हां कोल ना बई। क्यों? रब ने उन्होंने भगती तो वांझे कर दिता है। भगत ते बाहज, तू उन्हां तो दूर रही। क्यों? उन्हां दे कोल बहेगा, अग दे कोल बहीए थोड़ा बहुता सेक लग ही जाता है। उन्हां दे कोल रहेगा सारा दिन उन्हां नैगेटिव गल्लां करनियां ने, सारा दिन नकारात्मक गल करनी है, मैं मर गया मैनू कुछ नहीं मिलिया, ऐसी गल्लां सारा दिन। रोटी खा ली है सवेरे चंगी भली खा ली है, फिर कहते मैनू रब ने की दिता। सारा दिन उन्हां दा नकारात्मक निकलता है। कहते ऐसे मनुखा तो दूर रही, तेरी जिंदगी नूं भी नरक बना देणगे। इस करके महाराज ने बाणी विच भी कहा, महाराज ने यह भी कही दोस्ती किहदे नाल लाउणी है, यह भी दसिया। महाराज ने भुल के भी कदे उस मनुख नाल दोस्ती ना ला लई, कदे उन्हां नाल रिश्तेदारी ना गंढ लई जिन्हें कदी रब दा नां नहीं जपिया। कहंदे क्यों? कहंदे जेड़े रब तो टुटे हुए ने, जेड़े रब दे सके नहीं बने, वो किसे दे सके नहीं हैं। साध संगत जेड़े रब ने अखां दित्तियां, हथ पैर दिते, जेड़े उहनूं भुल गए, फिर असीं उन्हां ते भावें 100 परोपकार कर दईए, 100 बाद 101 ना करिए भुल जाणगे। जिन्हां ने कदी परमात्मा का धन्नवाद नहीं किया, वो एक मनुख का धन्नवाद की करनगे। बाणी कहती मनमुखा केरी दोस्ती। मनमुख कौन हुंदा है? जिहड़ा गुरु की गल ना मन्ने। गुरु कहंदा शुकराने विच रह, मनमुख कहंदा शुकराना नहीं, मैनू मिलिया ही कख नहीं। वो मनमुख है। दिते थावों देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए। जो परमात्मा ने इनू नियामतां दित्तियां ने उन्होंने भुल जाना, उन्होंने कहते हैं मनमुख है। परमात्मा नू याद करने का की मतलब है? शुकराने में आ जाना, उन्होंने याद करना है। महाराज कहते जदों मनुख साध संगत में आ जाता है, उन्होंने कोई भी दुश्मन नहीं लगता। क्यों? उन्होंने पता लग जाता है दुनिया दे विच कोई दूजा करने वाला नहीं, करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोई, तां दुश्मनी खत्म होंदी है। जे उस दे नाल किसी का कोई उहदे नाल वैर कर भी रहा है, वो सोचता नहीं इहदे पिछे भी कोई ना कोई भला होएगा, इस दे पिछे भी कोई ना कोई फायदा होएगा। मैं कल भी सुनाई है, एक मनुख है अपने भरावां दे अगे बेनती करता है, सारे भरावां दे विच हिस्सा हुंदा है, उहनूं भरावां ने पैली ना दित्ती, बाहर कढ़ दिता। वो कहंदा भरावो चलो नहीं कुछ देना ना देवो, मैनूं अपनी पैली विच नौकरी रख लो नाल, लोकां नूं की पता है मेरे बच्चे पल जाएंगे। कहते नहीं तेनों नौकर भी नहीं रखना, बिल्कुल उन्होंने दरकार रहे ने। हुण वह मनुख कहता है, वह मनुख उदों सोचता है परमात्मा मेरे नाल बड़ी माड़ी करदा, मैंने तो रोटी जोगा भी नहीं छड्डिया। थोड़े सालों बाद मेहनत करता रहा, रब की ऐसी रंगत, वो कहता अज मेरे को करोड़ों रुपया का बिजनेस है और मैं रब का धन्नवाद करदा, तू ठीक किया मैनूं उदों नौकरी नहीं दित्ती।
जे मैनू उदों उन्हां तो नौकरी दवा दिंदा मैं सारा उम्र नौकरी जोगा ही रह जाना। ये उहदी खेड है ना। ऐसी खेड मनुख नूं पता लग जाती है, उन्होंने पता लग जाता मेरी मत थोड़ी है, जो कुछ भी मेरी जिंदगी च हो रहा है ये पिछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है, भला ही है, कुछ ना कुछ तो है। और सानू तो असी ने मनुख तो एकदम रिएक्शन करता है ना। अज उस तो को रब ने कुछ खो लिया है, वो नालों नाल रिएक्शन करता है, माड़ा हो गया। आप कई बार वेने कोई जीव दुनिया तो चला जाए, मनुख अक्सर कहता थोड़ी गल भारी है फिर भी मैं करनी चाहवागा। मनुख अक्सर कहता बड़ा माड़ा होया, आप सारे कहने हैं, पर बाणी कहती नहीं। जीव का आना उहदे हुक्म विच, आवत हुक्म विनाश हुक्म आग्या भिन्ना कोई। जदों आना हुक्म विच है फिर विनाश हुक्म विच है। चलो असीं ये तो नहीं कह सकते चंगा है, सिर्फ इन्ना कह सकते हैं भाई जो परमात्मा का हुक्म। गल ये माड़ा नहीं, माड़ा शब्द नहीं वरतना चाहिए, कोई नहीं भाई जो परमात्मा का हुक्म। गल ये वे माड़ा नहीं कुछ भी हो रहा दुनिया ते। महाराज कहते जो कुछ करे सो भला कर मानिए, जो कुछ भी वो करता है उन्होंने भला करके जानो। प्रसाद सिंह मनुख की इड्डी बुद्धि नहीं, मनुख अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी जिंदगी का रिजल्ट कढ़ लैंदा है। पर बाणी कहती है तेरी बुद्धि बहुत छोटी है और परमात्मा बहुत वड्डा है। तेरी जिंदगी दे विच जो कुछ भी हो रहा है वो दे हुक्म च हो रहा है और चंगा हो रहा है। महाराज बाणी दे ताई क्या ना जपजी साहिब च कहते जो जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। है परमात्मा तेनू मेरे नालों ज़्यादा पता है, मेरी जिंदगी दे विच कुछ हो रहा है। मैं कई बार कहा साध संग दुश्मन सब मीत, क्यों हो जाते हैं दुश्मन सब मीत? उन्होंने पता लग जाता है मेरे नाल ये दुश्मनी भी कर रहे हैं, ये पिछे परमात्मा का कोई हुक्म है। किसी नाल परमात्मा ने बोल चाल बंद करा दी है, वो भी सोचता है ये पिछे कोई हुक्म है, चंगा ही होया है माड़ा नहीं होया। जो भी होया है वो चंगा ही हो रहा है। अगे महाराज कहते ने साध संग किस स्यों नहीं बैर। जो जो मनुख प्रभु की बंदगी करता है वह किसी नाल वैर छड्ड ही दिंदा है। वव्वा वैर ना करिए काहू। महाराज बाणी च कहते ने वैर तू किसी नाल भी ना कर। क्यों? किहदे नाल वैर करेगा? हरेक दे अंदर ते परमात्मा है। तू जिहदे नाल वैर कर रहे हैं वैर उहदे नाल नहीं है, वो तेरे नाल जो कर रहा वो आप नहीं कर रहा, हुक्म विच हो रहा है। वो तेनू गालां कढ रहा है, तेनू मारना चाहुंदा है, ये भी हुक्म है। गुरु अर्जन साहब जी नूं तत्ती तवी ते बहा रहा है जहांगीर। महाराज उत्थे की कहंदे तेरा की आ, क्यों कह रहे ने ये भी चंगा है। वह तत्ती तवी ते रहे ने, पर उत्थे बैठ के भी क्यों कह रहे ने? उन्होंने पता है रब हुण जहांगीर नाल ये नहीं, जहांगीर तेरे बच्चे चले जाण, तेरा राज खो जे, कोई बददुआ नहीं दे रहे उन्होंने। महाराज कहते ने जो जो करदे अहंमेव, जेड़े जेड़े भी हंकार करते हैं गुरु नूं ये पता है धर्म न्याओ पचंदे। धर्म के न्याय दे विच उन्हां नूं पिठ वेखणी, पूरा न्याय करे करतार। बाणी कहती है परमात्मा जिहड़ा है वो पूरा न्याय करता है, साचा साहिब सच नाई। पर महाराज अपने मुखों नहीं शब्द बोल रहे। अजकल का मनुख होए थोड़ी जी बंदगी करता है, वह कोई उन्होंने 100 रुपये ही ना देवे, नालों नाल बद असीसां ते खलो जाता है। पर जेड़े पहुँच गए ने वो कहते नहीं ये जहांगीर का कसूर नहीं है। जिमें श्री कृष्ण जी के पैरों में जदों तीर मारिया बदक ने, वो आके रोन लगा, कहते मैं सोचा हिरण की अख है, तुहाडा पदम चकरिया, तुहाडे पैरों 'च तीर वज गया। कृष्ण जी कहते तू रो ना, ये तेरा कसूर नहीं है, तू क्यों करता बन रहा है? तू करता नहीं है, उन्हें जो किया है वो ठीक किया है, ये हुक्म है, ये तेरा कसूर नहीं, तू करता नहीं है। ये परमात्मा ने मेरे शरीर का अंत होना ही इस तरीके नाल, ये उन्होंने पता लग जाता है। जे चाहते कृष्ण जी अवतार ने उन्हें तीर मारिया उत्ते खलो जाते, तेरे बच्चे भी जाते रहन, तेरा फलाना भी, तेरा वो ताई तो हाथ जोड़ के खलोता भी अवतार के पैरों च लग गया, पता नहीं की कहेंगे। पर नहीं, महाराजे भाई मरदाने नूं कहंदे मरदानिया ये बेसमझ ने, ना समझ ने, इन्हां नाल की लड़ीए? नहीं भाई। पर बाणी कहती है जेड़े
सतपुरख की निंदा करते हैं, सतपुरख नाल वैर रखते हैं। वो सतपुरख तो उन्होंने कुछ नहीं कहता, पर साध संगत याद रखना, सतपुरख कुछ नहीं कहेगा, पर रब का न्याय उन्होंने मार दिंदा है, रब का न्याय उन्होंने तबाह कर दिंदा है। रब के न्याय दे विच फड़े जाते हैं, उवें सतपुरख नहीं उन्होंने कुछ कहता, क्योंकि उन्होंने अपनी अवस्था का पता है। अगे महाराज कहते ने, साध कै संग ना विंगा पैर, विंगा पैर भाव उहदे कदम फिर माड़े बन्ने नहीं जाते। जेड़े सत संगत विच आउंदा है, जिहदा मन रोज़ बाणी पढ़दा है, सत दी संगत करदा है, विंगा पैर नहीं रखेगा, टेढ़ा पैर नहीं रखेगा, गलत थां ते नहीं जाएगा, गलत मनुख दे नाल नहीं जाएगा। अगे महाराज कहने, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंद। परमा आनंद नूं प्राप्त हो जाता है, फिर उहदे वास्ते मंदा कोई नहीं। महाराज बाणी च कहंदे ने, मंदा जाने आपको अवर भला संसार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली। इत्थे कहंदे ने, वो मनुख कहंदा नहीं कोई मंदा नहीं है, इत्थे गुण अवगुण का एक उदाता, इत्थे गुण देण वाला भी एक है, अवगुण देण वाला भी एक। साध संग कुछ चीज़ां समाजिक तौर पर गलत हो सकदियां ने, कोई भी मनुख है चोरी करता है, समाजिक तौर पर वह गलत है, रब के न्याय में वह गलत नहीं है, क्योंकि चोर भी परमात्मा के हुक्म में है, इत्थे साध भी उहदे हुक्म में है। इस करके याद रखना, जिहड़ा चोरी कर रहा है समाजिक तल पर वह गलत हो सकता है, पर रब के न्याय के अनुसार वह गलत नहीं, उन्हें पैदा किया है। मत जानो किसी क्या किच हाथ है। महाराज बाणी गुरु अमरदास जी ने तो बड़ा सोहना लिखिया वारां च, उत्ते कम ओए लाया, इस तो अगे शब्द वरतते हैं महाराज। पहला महाराज कहते उन्हों का कसूर नहीं है, उन्होंने रब ने उस काम पर लाया होया है, उस काम पर लगे हुए हैं। इस करके साहब जी कहते ने, मनुख नूं किसे नूं वेख के ये तो अपने मन विचों कढ़ देना चाहिए फलाना माड़ा है, नहीं। साध संगत जिथे भी वो लगे है, अपनी मर्जी नाल थोड़ी ना लग सकता है। इत्थे अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं हो रहा किसी की, जो कुछ हो रहा है हुक्म में हो रहा है, उहदे हुक्म दे विच ही मनुख चंगा है, हुक्म दे विच ही माड़ा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विड़ाना। हे परमात्मा, ये तेरे चोज ने, पखारी भी तेरे हुक्म में है, इत्थे दाता भी तेरे हुक्म में है, इत्थे चोरी भी तेरे हुक्म में है, इत्थे ईमानदारी भी तेरे हुक्म में है। इस करके ते कहंदे ने, कदे ईमानदारी ते मान ना करी, कदे भी ना करी, कदे अपने आचरण ते मान ना करी। कहंदे ने अपने आप नूं नीवा रख, यही कह परमात्मा मैं ठीक हाँ, ये तेरा हुक्म है। कई बार सुनाया, एक पिंड दे विच एक बीबी नूं लोग वट्टियां नाल मार रहे हैं, ये बड़ा माड़ा काम करदी है, वट्टे मार मार के बाहर कढ़ रहे हैं। एक संत तुरया आया, उन्हें बीबी नूं आख्या, रुक जो भाई, हजे ना मारो, हुणी मार लियो। कहंदे क्यों मार रहे हो? कहंदे बहुत गलत किया है इन्हें। वो कहंदा ठीक है, हुण वट्टा इहदे ओ मारियो जिन्हें जिंदगी च कदे गलती नहीं की, वो वट्टा मारियो। हुण सारे वट्टे रख के अपने घरां नूं जांदे रहे। कहंदे हरेक मनुख गलती करता है, कई शरीर ते प्रगट कर देंदे ने, कई मन विच कमाउंदे रहिंदे ने, मौका नहीं मिलिया। मैनूं मस्कीन जी की गल बड़ी याद आउंदी है। वो कहंदे ने मनुख उदों तई ईमानदार है जदों तई बेईमानी का मौका नहीं मिलिया। मनुख उदों तई वड्डे आचरण वाला है जदों तई बेआचरण होने का मौका नहीं मिलिया। वड्डे वड्डे डोल जाते हैं, कोई पता नहीं। अजू सुनाओ समुद्र में, क्या जानना क्या होए। हज ते गड्डी चल रही है, किस्ती चल रही है, की पता लगता है कल नूं की होना है, कल का की पता है। परमात्मा की माया एडी जटल है, पता नहीं किहड़ी माड़ी जी धुन दे नाल ही अंदर किहड़ा वकार पैदा हो जाना, किसी नूं नहीं पता। ताई करके गुरबाणी विच बार बार अरदास, डंडोत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। बार बार कहते हैं, हे गुरु जी मैनू हथ दे के रखी, मेरी ये पाया नहीं, मैं ठीक नहीं हाँ, ये गल कहते हैं। अगे महाराज कहते साध कै संग नहीं ना ही हो ताप, साध कै संग तजै सब आप। अपने भाव नूं जिहड़ी असीं गल कर रहे हैं,
अपने हंकार नूं मनुख मिटा दिंदा है। आपे जानै साध वडाई, नानक साध प्रभु बन आई। उन्हां दा परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाता है, जिहड़े परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं। गुरु जी ये किरपा करन आपां भी प्रभु की बंदगी विच जुड़ के, परमात्मा के नाम विच जुड़ के परमात्मा की बंदगी करिए। और दुनिया दे विच जो कुछ भी हो रहा है, समाजिक तौर पर आवाज़ चुकनी, रब चकवाउंदा है आवाज़, वो भी उहदा हुक्म है। जे मनुख कोई एजीटेशन कर रहा है, वो भी उहदे हुक्म है। मस्कीन जी कहते हैं, कहते एक बारी मैं सीसगंज साहब कथा की तो मैं कह दिता भी जिहड़ा 1984 च होया ये बड़ा माड़ा होया है। कहते कोई जगियासू सी, वो नाल ही मेरे कथा सुनता होएगा। कहते मस्कीन जी नूं कहंदा, मस्कीन जी तुसीं एक दिन ये कहा सी भी जो कुछ हो रहा है हुक्म विच हो रहा है, फिर ये क्यों नहीं मानते जो वो भी होया वो भी हुक्म विच होया। मस्कीन कहते हैं भी ये गल तो मेरे सवाल तो बड़ा वड्डा सी भी ये क्यों नहीं मानते जो 84 च होया वो भी हुक्म च होया। मस्कीन कहते मैं गुरु अगे अरदास की, महाराज ਇਹਦਾ जवाब तुसीं इहनूं जरूर दवाओ। मस्कीन कहते मेरे अंदरों जवाब आया, कहते आओ भाई जेड़ा मैं उदों बोलिया सी वो भी हुक्म च बोलिया सी, तू ये क्यों नहीं मानता, ये भी मैं हुक्म विच ही किया है। रब ने वो मेरे तो कहवाया, वो भी हुक्म विच कहवाया। जो मैं अज बोल रहा भी ये गलत होया है, ये भी हुक्म विच होया है। मेरा बोलना भी हुक्म विच है। हों आपों बोलना जानदा, मैं कहिया सब हुक्म हो जियो। गुरु नानक साहब जी का यह वचन। इस करके जो कुछ भी मनुख बोलता है वो हुक्म विच बोलता है, परमेश्वर की आग्या विच बोलता है। आग्या भिन्ना कोई, वो तो बाहर कोई नहीं। साध संगत इन्नियां बेनतियां परवान होई भुल चुक दी लिखी मां करनी जी। गुरु जी किरपा करन, आप सबनां नूं देह अरोगता बख्शण अते उद्यम उपराला बख्शण, आप जी सत संगत विच आ सको। गुरु अगे अरदास, महाराज उद्यम बख्शिया करो, असीं तेरी संगत विच आके कोई जिंदगी के 40-45 मिनट इन्हां घड़ियां नूं मुल्यावान बनाइए। गुरु की गल पता लगती है, गुरु के किसी साखी का पता लगता है, जिंदगी सुधरती है, जिंदगी वधिया बनती है। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दी लिखी मां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की